उन मनीषियों ने उस सत्य का ज्ञान किया था, उनका हृदय विशाल हुआ, विशाल हृदय से विशाल वाणी। अगर कोई धर्म या कोई सामाजिक प्रणाली घृणा, द्वेष या भय की बात करता है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये यूनिटी नहीं है, ये प्रभु की ओर जाने का रास्ता नहीं है, ये तो शैतान का है। इसलिए आप सबका फर्ज रहता है कि राष्ट्र मत को, सच्चे संयोग को किसी दायरे में न समझे, इसको कोई इंस्टीट्यूशन न कहें, क्योंकि ऐसा काम करके विगत में इसकी निरादर हुई है और लोग उन्हीं कमियों से, उन्हीं कमजोरियों से घिरे हुए दिखाई देते हैं, जिसको वो छोड़कर कभी सत्य के संधारण मिलते हैं। अगर दोष है तो मनुष्य के मन में दोष है, और मन को शुद्ध करने के लिए सत्कर्मी को अपना अत्यंत काम करना है। जैसे बीमारी के कारण शरीर और मन दुखी होते हैं, बीमारी हटने से शरीर और मन सुखी होते हैं, ऐसे ही मन के दोष हटने से आपके अंदर सुख, शांति, संतोष, आनंद पैदा होगा। और जिस मात्रा में ये हटेंगे, उसी मात्रा का इस प्रकार का ज्ञान सुख, शांति, संतोष से भरा है, आपको हासिल होगा। इसलिए अपने जीवन में सत्य की स्थापना करना सबका परम धर्म है, और सत्य की स्थापना के हेतु ही संसार रची गई है। और समय के साथ साथ सभी व्यक्ति को देर अबेर सत्य की स्थापना का मौका प्रदान करेगी।
there is somewhere inside. As you are outside, there is a problem. If you go inside, there is a want of happiness. बढ़िया, देखो जीवन बटा है दो भागों में, एक अंदर एक बाहर। Understand? Yes. Let's read the next line. बाहर दुख की रचना भारी, अंदर है सुख। Supreme has arranged outside all problems, pain, misery, anger. And inside he has created Sukha. Ocean of happiness is there. What do you think is up to you? Where to live outside? Yes. बहिर्मुखी सब जीव जगत में सब बाहर मुख जीव है। And then? दुख सहते खो पाते हैं। And all suffer after gaining and after losing. खोकर और पाकर, खो पाकर. You have lost, you are in anguish. You have gained, you are in anguish. गुरु नाम को पाकर
नाम को पाकर मन तेरा, तू अज्ञान तजे सत कर्म करे, तू अज्ञान तजे सत कर्म करे, तो काटे तेरे सब ही बंधन, तो कटे तेरे सब ही बंधन, गुरु नाम ध्यान ही करनी है, गुरु नाम ध्यान ही करनी है, कर देंगे तुझ में परिवर्तन, गुरु नाम को पाकर मन तेरा, सरो कृपा। पढ़िए गुरु नाम। गुरु नाम को पाकर मन तेरा, रच देगा सभी जगह। Master said that if you will receive as gift the name of the Supreme, your mind will be completely refined. अभी Refined. अभी बात कठिन दिखे तुझको, पर सहज बने होगा अच्छा। It may be that it is difficult to understand at this stage, but once you are there, the whole process of emancipation is smooth and सरल बनने लगता है। ये काम हो गया और होगा अच्छा। and then liberation is all a smooth process. सब खोल उतरे मन के And तेरे, all the covering over the mind, both physical and mental, of the final region and coarser region, all the covering belonging, light and dislike belonging to this region, will subsequently washed away, thrown away. मौका मिला तो थोड़ा बदतमीजी करके आगे घुस जाऊंगा। हजूर मैंने कहा कि ये evergreen man. नहीं, मेरे नेफ्यूज अमेरिका से आए और उनकी गिफ्टेड वाइफ है, उनको मौका मिलना चाहिए हजूर से कुछ पूछने का, इसलिए मैं पीछे रह गया। जब अंकल है तो बोलते नहीं। Yeah, I am asking them. Yeah, I know. Asking them. You can ask any question. Because the Ramsar is an individual phenomenon. If you at all think that this world is happy, I have nothing to say. If you at all think that end is death and that is a big vacuum, if suppose the fact that people do not realize that they have to die one day, if you consider it becomes an obsession with you that yes, this is a must, then whatever you are doing today, how it is going to be doing that day, how you will see with the all open hand, you will welcome that situation. See, and you say they prepare a military man. They always keep in view war going on. And these stages may come. And so accordingly they train the military person. And whatever the accumulated experience of different wars are there, that is full discipline. They are discussion and they also simulate war conditions. And they keep the enemy armies always moving in readiness. So it is that in ordinary human warfare, so much preparation is needed only to face that situation. Nobody knows whether your army will be victorious or not. But the preparation is all going on. So the way you are living and passing your days, are you going to prepare? How are you preparing for that day? When the death will be just nakedly looking at you. But does it mean that God is cruel and He has ordered the process of death in life uselessly? If you will say that if Dayavan is not cruel,
And nothing is absurd in this world as far as we know through our higher intellect. So why it is that process is 100% useless thing and has no purpose? So is it not your duty to discover after all what is the secrecy behind it? How does it benefit? And how will it benefit you particularly? The moment you start preparing, keeping in view this reality, that benefit has already occurred. That you will certainly follow the path of righteousness. Why should you cheat anybody when you have to? अब एक तुलसी साहब आत्मा ने कहा है, अरब खरब नौ दरब लो उदय अखिलो राज, तुलसी जो निर्मरण है कौने ये काज। तुलसीदास का है कि नहीं? तो ये उनका एक कपलेट है कि अरब खरब नौ दरब लो या उदय अखिलो राज, फ्रॉम दी dawn to dusk, इतना आपका किंगडम हो जाए। When you have to die, how they will be of any use to you at that time? That is what I am saying. If that is in view, then what should you do? एक पुराना मुसलमान फकीर की कहावत है कि मालिक और मौत को दोनों को साथ में रखना चाहिए। And that means that must be in your thought. If you remember the Supreme, you also remember the. And the remembrance of the Supreme will wipe away the. Because then we will know that why. जैसे कभी साहब कहते हैं कब मरी हो कब पानी हो कब मानो पूरा समझ। When you are redeemed, so that is just a change of clothes at that time. With a newer garment, you will go to the Supreme. Problem they most of everybody is facing. Yes, yes. We are seeing that everywhere, right to left, front, back, everywhere, always. But we think that it doesn't come to us. So This is cheating. This is because of our predominant or sweet. Stand on my bed. गुरु चला प्लस करा हाँ नीचे देते टाइट है तू कार्ड्स के बेटे ग्रैचर ग्रैचर नीचे नीचे Stand up. I'm the tallest, so I'm in the back. come this side गुरु क्लियर Yes, in the back. I'm in the front, down in the back. डॉक्टर गुरु प्रसाद देखना चाहिए तू सोना गुरु प्रसाद Hello. अति जोड़ मोर मुस्को
अभिलाषा स्वामी यह अभिलाषा स्वामी मैं हूँ अभागा मन का चेहरा क्रोध काम मद लोभ घेरा मैं हूँ अभागा मन का चेहरा क्रोध काम मद लोभ घेरा अहंकार के अंध में डूबा अहंकार के अंध में डूबा नीच विवल नाकामी नीच विवल नाकामी अखियन में बस जाय चली तुम यह अभिलाषा स्वामी यह अभिलाषा स्वामी बंद कवाट मेरे खुलवाओ आस पास में दीप जलवाओ बंद कवाट मेरे खुलवाओ आस पास में दीप जलवाओ नाता छूटे काल देश से नाता छूटे काल देश से सुनो है पुरुष अनामी सुनो है पुरुष अनामी अखियन में बस जाय चली तुम यह अभिलाषा स्वामी यह अभिलाषा स्वामी राधा स्वामी सतगुरु सदकिरपाला नौचावर में चरण दयाला राधा स्वामी सतगुरु सदकिरपाला नौचावर में चरण दयाला दीनहीन की लाज राख लो दीनहीन की लाज राख लो शत शत तुम्हें प्रणामी शत शत तुम्हें प्रणामी अखियन में बस जाय चली तुम यह अभिलाषा स्वामी यह अभिलाषा स्वामी अखियन में बस जाय चली एनी क्वेश्चन? यदि भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में ना आई हो, anything which you couldn't understand, or you have a personal question,
किसी एक व्यक्ति की या किसी एक समूह की या किसी एक युग की देन नहीं है। ये मानव की अनंत पीढ़ियों के प्रत्येक इंसान के जन्म से मरण तक एक संघर्ष के फलस्वरूप आज का वर्तमान आपके सामने है। हर एक इंसान अपने जीवन काल में जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने जीवन को इष्ट मित्र रिश्तेदारों और देश प्राणी के जीवन को खुशहाल बनाने की सतत कोशिश करता है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो या जीवन के अन्य क्षेत्र हो। सभी क्षेत्र में अनेकों पीढ़ियां इंसान की ये कोशिशें कि जीवन सुंदर हो, सुगम हो, भावी पीढ़ी अच्छी तरह से जी सके, सुरक्षित जी सके, इत्यादि इत्यादि के भावनाओं से वो अपने अपने ढंग से कोशिश करते आए। आज भी युग इसी कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन अरबों इंसान की कोशिश, चेष्टा, उसके सारे जीवन का समय आप सबको भली बात मालूम है। आज की समस्या यह है कि हवा भी महंगी हो रही है और शायद भविष्य में पेयजल भी दुर्लभ हो और वातावरण तेजी से, क्या रूरल या क्या अर्बन, दोनों बहुत तेजी से मलिनता से घिर रहे हैं। और यदि कोशिशों का परिणाम यह है तो भविष्य बेहद अंधकार में है, इसमें कोई सवाल नहीं। मनुष्य शुरू से प्रकृति के प्रकोप को देखकर भयभीत था। आज भी वो प्रकृति के प्रकोप से अधिक स्वयं अपने जाति के प्रकोप से भयभीत है। मनुष्य के लिए ही काल का स्वरूप बन गया है। आप सोच सकते हैं ऐसी दशा में वो किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहा है, वही जानता है। इन बातों को जिस बुद्धि ने अभी तक परखा नहीं, समझा नहीं और इससे अपने जीवन के लिए कोई निष्कर्ष निकाला नहीं, वो बुद्धि मलिनता से ग्रसित है। वह सत्य की पहचान कैसे कर सकता है? इसीलिए जब तक आप इन बातों का जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं उसका निष्पक्ष अध्ययन नहीं करते, उसको एक दार्शनिक दृष्टि से नहीं देखते, आपके अंदर आपकी कोई भी चेतना सत्य की खोज करनी चाहिए। इसके अभाव में ही जीवन की ये दुर्दशा है, आपके अंदर कभी नहीं जाएगी। लेकिन ये बड़े ही दुख की बात है, न सिर्फ पश्चिम और पूरब में बल्कि सर्वत्र मनुष्य
अपनी सीमाओं को और दुनिया की हालत को देखकर वो बर्बाद मजबूर हो रहा है कि सुख की, स्थायी सुख की तलाश की जाए। जब तक वो ज्ञानेंद्रियों के घाट पर, बुद्धि के घाट पर इस तलाश में नाकामयाब नहीं होगा, व्यक्तिगत व्यक्ति अंतर की घाट पर जो छिपा हुआ है, सामान्य बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों की पकड़ से छिपा हुआ है, उसकी ओर नहीं होती। सब शास्त्रों ने, महापुरुषों ने इस बात को स्पष्ट किया है कि सुख का सागर स्वयं वो महाशक्ति, वो परम प्रभु मनुष्य के अंदर ही विराजता है, जो आत्मा के स्वरूप में है, जो उसका निज अंश है। उसी के अंदर उस परम पिता के गुण है। परंतु क्या कोई शख्स अपनी कोशिशों से उस महाशक्ति को, जिसका वो स्वामी है, जो गुप्त है, उसको पहचान सकता है? यदि ऐसा होता तो कोई न कोई ऐसे व्यक्ति अवश्य होते जो उसके पहचानने का दावा करते हैं। यदि आप मानते हैं कि संतों ने उसकी पहचान की, तो उन्होंने कभी दावा उसकी पहचान का आपने नहीं किया। उन्होंने श्रेय अपने महापुरुष को, गुरु को दिया, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा जो कुछ भी ज्ञान उनको उस आत्मशक्ति, आत्मसत्य के मौजूदगी का प्राप्त हुआ, उसका स्वरोवार है उनको नहीं, बल्कि उनके गुरु का। जाहिर है कि अगर ये सत्य है, ये सत्य वचन है, तो यदि आप के अंदर ये चेतना जागी है कि आपके अंदर मौजूद सब शक्ति आपके पकड़ में आए, आपको उसका ज्ञान हो, तो आपको भी जागृत महापुरुष का जो इसमें योगदान दे सकते हैं, जो आपको इससे परिचय करा सकते हैं, आप करना चाहिए। अब आप इस सिलसिले में अध्ययन में ढूंढें, पूछें, पूछताछ करें कि आखिर उस महापुरुष का क्या स्वरूप होगा, उसका दिनचर्या क्या होगा, वो किस रूप में आपको मिलेंगे। यदि आपने ये समझ लिया जैसे आप हैं, वो भी एक साधारण इंसान होंगे, लेकिन ज्ञान के भंडार होंगे, उनका एक क्षण का मुलाकात आपके पापों को, भ्रमों को नाश करेगा, तो आप ऐसे करें, आपको अवश्य कामयाबी मिलेगी। क्योंकि यदि ये रचना का निर्माण जीवों के जागरण के लिए हुआ है, उत्थान के लिए हुआ है, उसके अंदर एक कुछ परिवर्तन के लिए हुआ है, वो परिवर्तन अवश्य होगा। और यदि आप इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो शायद कुदरत की शक्तियां आपके लिए 2 कदम आगे बढ़ाएंगी, आपके भ्रम नाश होंगे और आपके अंदर सत्य की पहचान करने की क्षमता लगेगी। इसलिए सत्य की जिज्ञासा सामूहिक नहीं होती, यह व्यक्ति के अंदर होती है
और व्यक्ति को ही अपने हृदय में इसकी आवश्यकता महसूस करनी पड़ेगी। व्यक्ति ही मोक्ष का अधिकारी बनता है। इसलिए इसमें कोई भीड़ भड़का, कोई दिखावटी आयोजन या प्रयोजन का कोई स्थान नहीं है। यह पूर्णतः अंतर्मुखी क्रिया से जुड़ा हुआ एक साधना है और यदि जीव इसे अपनाना चाहता है तो अवश्य उसे ऐसे शासक मिलेंगे जो स्वयं इस क्रिया से जुड़े हुए हैं और हर को इसी क्रिया से जुड़ाकर अपना परिचय देकर उसका कल्याण करते हैं। उसके अंदर एक परिवर्तन का सिलसिला शुरू हो जाता है और देखते ही देखते एक काग जैसा इंसान एक हंस के गुण धारण कर लेता है। आप मन की मलिनता के कारण, तन के मलिनता के कारण काग जैसे इंसान, जब इन दोनों मलिनताओं को कर देंगे, विकारों से छुट्टी पा लेंगे, आप हंस बन जाएंगे। और इस प्रकार से न सिर्फ आप अपना कल्याण बल्कि इर्द गिर्द के अनेक इंसान के लिए कल्याणकारी होते हैं। आपने देखा कि यदि एक व्यक्ति सुलझा हुआ है और वो जन के कल्याण से जुड़ जाता है तो वो देश विदेश को जागृत कर देता है। आपके देश में उदाहरण के तौर पर अनेक ऐसे राजनेता महापुरुष, जिसमें महात्मा गांधी का नाम भी आता है, तो उन्होंने जनहित को, जन कल्याण को अपना उद्देश्य आदर्श मानकर अपने जीवन के हर क्षण को अर्पित किया और एक सोई हुई जनता को, बेहद भयभीत और गिरी हुई जनता को आसानी से जागृत कर दिया। लेकिन वही जनता आज उसको प्राप्त करके, उस लक्ष्य को प्राप्त करके फिर सो गई और फिर वही अधोगति को जिससे उन्होंने जगाया था वही पहुंच रही है। ये तो रही राजनीतिक बात, लेकिन परमार्थी दृष्टिकोण से सभी इंसान जुड़े हुए हैं। यदि सोए हुए नहीं रहते तो वो आसमान के साथ जुड़ते हैं, वो कल्पनाओं को सत्य मानकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश है। जैसे मैंने अभी बताया कि सदियों से हर एक इंसान जन्म से मरण तक जीवन को सुखद बनाने की चेष्टा करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यही कोशिशें रहती रही हैं, ज्ञान विज्ञान हर क्षेत्र से। परंतु आज जहाँ पर आप मौजूद हैं, आप खुद सोचें कि किस मात्रा में ये चेष्टाएं अभी के पीढ़ी को वह सब कुछ दे चुकी है जिसकी वो अपेक्षा या आशा या उम्मीद करता है। आज व्यापक असुरक्षा और असंतोष दिखाई देता है जो पिछले युगों में इतना व्यापक नहीं था। तो क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हमारी कोशिशें सही नतीजे या फल दे रहे हैं? ये ऐसे प्रश्न है कि जिसे आपको जल्द पूछना पड़ेगा। अगर आप पूछते हैं और आप सोचते हैं व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय, निर्भय बनाने के लिए
आपको अपने जीवन में सामान्य जीवन से हटकर कुछ और चीज को स्थान देना पड़ेगा, तो शायद आप सही दिशा में सही चिंतन कर रहे हैं, और यही चिंतन आपको एक दिन सत्कर्मी को जीवन में अपनाने के लिए बाध्य करेगी, और तभी आप जागरण के क्रिया से जुड़ जाएंगे, और यही नारकीय जीवन में स्वर्ग उतारने में आप कामयाब हो जाएंगे। इसलिए निराशा की कोई गुंजाइश नहीं है। मनुष्य को अपने जीवन की समीक्षा करनी चाहिए, छानबीन करनी चाहिए, और निष्पक्ष होकर निर्णय लेना चाहिए। ये नहीं कि बाप दादे कह गए हैं आप उसका अंधा अनुकरण करें, बाप दादे कह गए चले गए, आप जिंदा है, आपके सामने जो समस्या है, आप जिन चुनौतियों का मुकाबला कर रहे हैं आप उन्हें देखें। आज आए दिन एडवर्टीजमेंट होते हैं कि हम लोग अपना जीवन बच्चों से उधार किए, क्यों ऐसे एडवर्टीजमेंट हो रहे हैं? हम लोग यदि प्रकृति की सुरक्षा कर रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर है कि कुछ लोगों के चिंतन में ये बात खटक रही है कि शायद हम लोग एक गलत दिशा में जा रहे हैं, और हम लोग जो कुछ विरासत में छोड़ने जा रहे हैं वो कूड़ा करकट कचरा के प्रभाव कुछ नहीं है। क्या ये उचित है? जिसके लिए आपने जान लड़ा दी उसके लिए करकट छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं आपको सोच विचार अपने दिशा को, चिंतन को सही रास्ता देना पड़ेगा, और उसमें ही सत्य याचना न सिर्फ मलिनता को हटेगी लेकिन कण कण को पवित्र करेगी। आप पवित्र होंगे, आपके विचार पवित्र होंगे, आपके हरेक कार्यक्रम उच्च कोटि की मानसिकता से, शुद्धता से भरी होगी, जिसमें जन जन का कल्याण निहित हो। इसलिए परमार्थ जीवन का श्रृंगार है। सत्कर्मी मनुष्य को मानव से फरिश्ते का, देवता का, और फिर अंत में प्रभु का रूप देता है। यदि मानव जीते जी इस रूप को हासिल नहीं करता तो धिक्कार है उसकी जिंदगी की, धिक्कार है उसके बुद्धिमान होने का दावा करने का, और धिक्कार है कि वो इस संसार में इतने दिन जिया और पूरा करकट नहीं छोड़कर गया। इसलिए अपने जीवन में सबको अपनाना, हर दृष्टिकोण से क्या
देते हैं, लेकिन जो वांछित फल है, जो परिवर्तन और जो उन्नति होनी चाहिए, वो इनके जीवन से दिखाई या परिलक्षित नहीं होता। इसलिए उन सभी भाई बहनों को कि जिन्होंने इस पद्धति को स्वीकार किया है अपने जीवन में, और जाहिर है उनके मन में अनेक आशाएं भी इसके साथ जुड़ी होंगी, उनका फर्ज हो जाता है कि वो अपने वास्तविकता की छानबीन करें। हर एक मनुष्य के जीवन की वास्तविकता एक उसका तन है और उसका मन है। तन को वो दिन रात देखता है, उसकी सीमाओं से, उसके सुख दुख से, और वो परिचय भी नित्य प्रति पाता रहता है। मन भी उसके पास है, लेकिन वो उसका एक अंश ही देखता है, और वो मन जो दुनिया से जुड़ा हुआ है, दुनिया की इच्छाओं से अटा पड़ा हुआ है।